ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साहब संगत जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਨ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ
ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕਠਨ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਭਾਈ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਨਿਤੜਕ ਸਨ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤੂਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਮਤ 1918 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ, ਮਨ ਨਾ ਕੀਨੋ ਰੋਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਤਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਤੇ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ,
जग विच कोआ। ਇਹਦਾ मतलब थम्मी साधु तो बिना इस संसार ਨੂੰ कोई नहीं दे सकता। ਤੇ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਆਪੋ ਤਾਪ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। चोरी, यारी, ठगी, बेईमानी, हेरा फेरी, रिश्वत खोरी, मिलावट, हंकार, निंदा, चुगली, ये सारा कुछ रह गया है। परंतु उस टाइम ते भी सत्कारयोग साध संगत समा ऐसा सी कि जदों साधु कोई ना रहा तो श्री गुरु नानक देव पातशाह जी संसार ते अवतरत होए। राय पोए दी तलवंडी विखे सतगुरां ने आके साध संगत गुरमुख महात्मा महापुरख साधु पैदा किए, जिन्हां करके इस संसार विच धर्म का प्रचार प्रसारण होया। इस करके बाबा जी बड़े महान आत्मा तपस्वी सन, जिन्हां ने बड़े बेखौफ गल्लां कीतियां सन कि जदों अफसरां ने पूछा भी तुसीं लाहौरों आउण दी इतलाह नहीं दित्ती, बाबा जी कहंदे इक्को वारी इतलाह देती है, बार बार सानू किसी नूं इतलाह देण दी लोड़ कोई नहीं। कोई डीसी डूसी नहीं सी समझदे, बड़े बेपरवाह सन। सतगुर बाणी च कहंदे ने बेपरवाह सदा रंग हार के जां को पाक सुआमी। विरले होंदे ने ऐसे गल्लां बातां नाल ते कोई भी कह सकदा मैं रब हाँ, परंतु ऐसे महात्मा वाकिया ही परमात्मा का रूप धरती ते आउंदे हन। साध रूप अपना तन धारिया। सो ऐसे महापुरखां दी आपां जीवन साखी सरवण कर रहे सी। अगला आउण वाला निर्मले संतां दी देश भगती दा अलौकिक करिश्मा महाराणी जिंदा नूं चुनाव दे किले चों कढण वाले निर्मले संतां दी नेपाल विच नाती बंस अजे तक भी उत्थे साध संगत संगतां इस इतिहास नूं जाणदियां हन। सो ये आने वाला प्रसंग आप जी सारे प्यार सहित सरवण करो। जिन्नी भी इस वेले लाइव संगत जुड़ चुकी है, एकाग्र मन बनाओ। आओ सारी संगत सतगुरां दे चरनां च एक बारी सिमरन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरू। श्रीमान बाबा महाराज सिंह जी सिख राज नूं स्थिर रखण दे हमायती योधे, महान संग्रामी, अंग्रेज़ों के कट्टड़ विरोधी अते भारत की आज़ादी के पहले नायक सन। भावें आप नूं जला वतन करके सिंगापुर की जेल विच भेज दिता गया, जिथे आप अनेक तसीहे सहते हुए 7 साल जेल विच रह के 5 जुलाई सन 1856 विच सचखंड सिधार गए और आप जी की जगाई आज़ादी की जोत होर भी तेज होके जगन लगी। बाबा जी बड़े नीति निपुण, व्यवहार कुशल अते जथेबंदक सन। आप जी ने श्री संत राम सिंह जी विरक्त की प्रधानगी हेठ 8 संतां दा एक जथा इस वास्ते बनाया सी कि महाराजा दलीप सिंह नूं चुक के अते अपने कब्जे विच करके महाराजा दलीप सिंह दे नाम हेठ अंग्रेज़ां नूं पंजाब विचों कढण वास्ते संघर्ष तेज किया जाएगा। लोग कहते जी संतां नूं की लोड़ है सियासत विच आउण दी। सत्कारयोग साध संगत, सियासत का रंग ही इन्ना बदल गया, इन्ना गंदा हो गया है। महापुरख ही इस नूं साफ कर सकते हैं। ते जिहड़े
ਧਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੁੱਚਾ ਲੰਡਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੋਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਸੱਵਰ ਢਾਡੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਰਕਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 8 ਸੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੌਰਵ ਗਾਥਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ 8 ਦੇ 8 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰੋਂ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਪਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ 5 ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਸਤੇ ਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਤ 4-5 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਤ 4-5 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ।
नेपाल नरेश ने स्वीकार करके महाराणी नूं राजसी शरण दे के थापा थली दे राणावां दे महल विच रहण दी आग्या दे दी। महाराणी नूं सुरक्षित स्थान ते पहुंचा के महाराणी नाल आए दोनों संत रणजोत सिंह जी ते संत रणधीर सिंह जी पश्चिमी नेपाल दे मुक्तिनाथ ਅਤੇ पवित्र गंडकी दे उद्गम स्थल वाल चले गए। संतां दे इत्थे जाण दे 3 कारण सन। साध संगत, जिवें कि इन्हां ने भेस बदल के बड़े ही ध्यान नाल महाराणी नूं हिंदुस्तान दे बार्डर तो पार कराया, यह भी एक बहुत वड्डा खतरा मुल लैण वाली गल सी कि जे अंग्रेज़ां नूं इस गल का पता लगदा तो फाहे ला देंदे। पर फिर भी इन्हां महात्मा महापुरखों ने बाबा महाराज सिंह जी की सपोर्ट करके पूरा सहयोग दिता। और ये 3 कारण किहड़े-किहड़े सन? हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार वालों महाराजा नेपाल ते दबाव वध रहा सी। महाराणी जिंदा नूं अंग्रेज के हवाले किया जाए। संत नहीं चाहते सन कि नेपाल राज उपर दबाव होर सख्त होवे अते साबित होवे। कली महाराणी होर सिख बागियां नूं भी महाराजा शरण दे रहा है। दूसरा संत महाराजे ते बोझ भी नहीं बनना चाहते सन। तीसरा, नेपाल के कानून अनुसार कोई विदेशी नागरिक नेपाल विच रह नहीं सकता। इस स्थिति नूं विचार के नीति अनुसार दोनों संत महाकालेश्वर स्थित दुर्गम पहाड़ियां दे जंगल विच गुफावासी हो गए। मगरों दूसरे 3 संत रणबीर सिंह, संत रण विजय सिंह अते संत रण विक्रम सिंह जी आण मिले अते 5 संत इकट्ठे हो गए। महाकालेश्वर मुक्तिनाथ का मंदिर दुर्गम पहाड़ियां में घिरिया भयानक जंगल में है। नेपाल के शहर पोखड़ा तो 10 दिन की पैदल यात्रा है। पुराण कथा अनुसार देवते दैंतां दे समुद्र मंथन समय निकले 14 रत्नां विचों भगवान शंकर ने हलाहल का सेवन करके इत्थे निवास रखिया सी। इस तीरथ भावें इत्थे अत्यंत बर्फ पैंदी है, पर शिवजी की विश के प्रभाव करके ठंड घट है। इत्थे बुद्ध काल समय दियां 108 गुफावां बनिया हुई हैं, जिन्हां विच 5 संत जाके रहे। इन्हां गुफावां विच इकल्ले संत ही नहीं सन, होर मतां दे साधु भी निवास रखते हैं, जिन्हां विच सन्यासी, नाथ, बोधी, लामे, तांत्रिक, मुसलमान आदि कई संप्रदावां मतां दे साधु प्रेम पूर्वक रहिंदे रल मिल के। कुल 108 साधु रह रहे सन। सारे योगाभ्यासी सन, संसार नालों टुटे हुए अपने आप आनंद विच सन, नाम चिंतन तपस्या विच दृढ़ सन। योगाभ्यास के कारण सब की आयु 100 साल तो तकरीबन ऊपर से। स्वस्थ आरोग अते प्रतीक इस तरह होंदे हन जिवें 55-56 साल दे होण। साध संगत कोई योगा असीं ये नहीं कह सकते भी हिंदुआं दा जाए पुरातन है ये वो। योगा का मतलब है कि शरीर की तंदुरुस्ती दे कोई आसन करने जिहदे नाल हरेक शरीर का अंग पुलकित रहे। उम्र 100 साल की है पर लगते जिवें 55-56 साल के हैं, तरुण लगते हैं। भिन्न भिन्न संप्रदावां दे हुंदे होए भी प्रेम सत्कार उल्लेखनीय है। समदृष्टि वाले उच्चात्मक अवस्था के स्वामी हम संसार नालों टुट के ईश्वर नाल जुड़े हुए हैं। समूह महापुरखों का भोजन केवल चावल है,
जो गर्म चश्मे विचों उबाले जाते सन। ये लंगर बनाउण दी सेवा निर्मले संतां ने संभाल लई। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। 108 संत वखरे वखरे मतां दे रहिंदे ने, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह की किरपा बख्शिश देखो कि उन्होंने गुफावां विच 5 निर्मले संत जिन्हों ने वो सारिया दे चावल बनाउण दी सेवा आप लै लई। ऐवं लगता कि जिवें सिੱਖੀ विच सेवा का जज्बा जिहड़ा है ना, ये गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, कलगीधर सच्चे पातशाह जी जिवें कुट कुट के भर दिता हो। गड्डियां विच ले जा रहे ने शहीद करन लई सिंघां नूं, पर संगतां लंगर बना के हसन अबदाल स्टेशन ते दाल ते प्रशादे लैके बैठे ने गड्डी दी लैन दे विच। बई भाई गड्डी रोको, असी इन्हां संगतां नूं गप्पा पानी छकावांगे, फिर भावें शहीद कर दिओ। किड्डा वड्डा सेवा दा ये साध संगत जज्बा है। ये सब गुरु नानक, गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह की कृपा। अज भी मौजूदा समय में इस सेवा का बड़ा महान कुंभ एवं ही संगतां ते महात्मा कर रहे हैं। सो मगरों दूसरे 3 संत भी उत्थे आ गए, 5 इकट्ठे होए। 5 संत 1925 ईस्वी तक जीवित रहे, जिन्हां दे अगे 35 सेवक बने। ये सारे महापुरख भावें भारत और संसार नालों संपर्क तोड़ बैठे हैं, पर गुरमत गुरबाणी नाल होर भी दृढ़ हो गए। पहले 5 संतां ने अपने सारे शिष्यां नूं गुरमर्यादा अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 10वें ग्रंथ के अर्थां सहित पढ़ाए। सारियां नूं 10 गुरु साहिबान अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इष्ट दृढ़ करवाए। वाहिगुरु मंत्र का जाप, गुरबाणी का नितनेम प्रपक करवाया। कई संत ब्राह्मण परिवार विचों हन, सारे संस्कृत के विद्वान हैं। संस्कृत भी उपरोक्त 5 देश भगत संतां ने ही पढ़ाई है। कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का मकसद सी इन्हां 5 निर्मले संतां नूं भेजण दा कि भाई तुहाडे कोल वेदां शास्त्रां दी, वेदांत दी सारी विद्या होवेगी ते तुसी देश के कोने कोने विच, दुनिया विच जाके गुरबाणी नूं सर्वोपरि दर्शाउण लई वेदां शास्त्रां दे प्रमाण दे के संगतां नूं प्रेरित करना, ये सतगुरां दी बड़ी भारी दूर अंदेशी सी। सो इन्हां 5 महात्मा ने अगे किन्ने ब्राह्मण भी सिख बना के उन्होंने गुरबाणी 10वें ग्रंथ के संस्कृत के विद्वान बनाया। ये साध संगत कोई सेवावां घट नहीं। जे साडे कोल विद्या है, इतिहास है, तां फिर साध संगत इतिहास संभालण नाल अगे अगे जांदा है भविख विच। तो जे साडे अपने कोल इतिहास ने अज हुण बहुत सिख ना बाणी पढ़ते ने, इतिहास ते 10वें ग्रंथ ते बचित्र नाटक ते भाई दियां वारां ते पंथ प्रकाश ते मोक्ष पंथ ते सब ते तर्कां ही तर्कां करी जांदे। इहदे नाल की होएगा? साडा अपना भविख खराब होएगा। इस वास्ते उन्हां महापुरखां ने सब नूं ये पढ़ाया। इस तो पता लगता कि जिथे महान देश भगत सिख राज के शुभ चिंतक सन, उत्थे गुरमत गुरबाणी अते संस्कृत के भी ज्ञाता सन। संत रणजोत सिंह जी की मृत्यु 1920 ईस्वी विच होई। उन्हां दे शिष्य संत वीर भद्र सिंह जी ये पंजाब दे सन। सचखंड वासी संत अर्धनाईश्वर सिंह, इन्हां दी मृत्यु 1933 विच होई। ये मद्रास दे सन। संत आशुतोष अविनाश सिंह, ये उत्तर प्रदेश के सन। संत वसुंधरा सिंह जी,
ये भी उत्तर प्रदेश के सन। सचखंड वासी संत मलिका राजन सिंह 1939 ये पूरे हुए, ये मद्रास के सन। संत अमेवीर विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के सन। संत अमृतधारी सिंह जी ये पंजाब के सन। नाम देखो किन्ने विचित्र ने। संत रणधीर सिंह जी ये दूसरे महात्मा, इन्हां दे शिष्य संत नरहरी सिंह जी पंजाब दे। सचखंड वासी संत अमृत सिंह जी, सचखंड वासी संत निर्मल सिंह जी, सचखंड वासी संत अजय सिंह जी, सचखंड वासी संत अभय सिंह जी, सचखंड वासी संत विवेक सिंह जी, सचखंड वासी संत मृगेंद्र सिंह जी, संत उदय प्रताप सिंह जी, संत भानू प्रताप सिंह जी, ये पंजाब दे होए ने सारे। संत उदय प्रताप सिंह, भानू प्रताप सिंह, संत युद्धवीर सिंह ते संत युधिष्ठर सिंह ये पुणछ दे होए। संत रंजन कुमार सिंह ये भी पंजाब दे होए। संत मयंक सिंह, संत शशीक शेखर सिंह, संत प्रियदर्शन सिंह, संत द्रोणाचार्य सिंह ये सारे पुणछ दे होए ने। तीसरे महात्मा संत रणवीर सिंह जी जिहड़े पंजे दे पंजे नाल गए सन, उन्होंने इन्ने अगे सेवक बनाए, इन्नियां नूं उन्होंने विद्या दी, गुरमंत्र दिता। संत रणवीर सिंह जी दे सेवक सन सचखंड वासी संत अजीत सिंह, संत नरेंद्र सिंह, संत सुरजीत सिंह, संत कार्तिकेय सिंह, संत प्रजापति सिंह, संत नागेंद्र सिंह ते संत नागेश्वर सिंह, ये सारे पंजाब दे सन। ताइयों साध संगत पुरातन इतिहास देखिए, पंजाब विच बड़े महात्मा महापुरख निर्मले साधुआं दे अस्थान ने। उदासीन महापुरखों के भी बहुत ने, पर निर्मले महात्मा दे बहुत स्थान, खास करके विद्या दे ये तां एक यूनिवर्सिटियां हो गए। चौथे महात्मा सन संत रणविजय सिंह जी, इन्हां दे सेवक सीगे संत अरुण सिंह जी, संत विनोद सिंह, संत प्रमोद सिंह, संत केशव सिंह, संत अग्निवेश सिंह, सचखंड वासी संत भगत वत्सल सिंह, संत वेदांत केसरी सिंह, संत विचित्र वीर, ये सारे पंजाब के सन। पंजवें जिहड़े संत सीगे संत रण विक्रम सिंह जी, इन्हां दे सेवक सी संत शिवराज सिंह, संत रश्मीरथी सिंह, संत भगीरथी सिंह, संत अरुण ध्वज सिंह, संत कीर्ति विजय सिंह, संत अनुरुद्ध सिंह, संत मारतंड भैरव सिंह, संतां ने इन्ने अगे शिष्य बनाए भी सारे पंजाब दे सी। संत अर्धनाईश्वर सिंह, संत मलका राजन सिंह जी अते संत भगत वत्सल सिंह, तिन्ने सचखंड वासी पहले सन्यासी संप्रदा के ब्रह्मचारी सन। देखो उन्होंने प्रेरणा दे के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सिक्ख्या दी, वेद शास्त्र पढ़ाए, सन्यासियों को गुरसिख बनाया। अज माफ कर देना, साडे सिख जिहड़े ने सन्यासी बन रहे हैं। उसका कारण कि साध संगत साडे अंदर बहुत प्यार मोहब्बत उत्साह घट गया, विद्या घट गई, निमरता घट गई। इस करके बहुत लोग अनमतां दे अनुयायी बन गए। ये तुसीं सारे देख सकते हो। सो इन्हां महापुरखों ने सन्यासी साधुआं नूं प्रेरणा दे दे के गुरबाणी दे मारतंड विद्वान बनाया। सो निर्मल पंथ विच शामिल होकर गुरबाणी का चिंतन करते रहे। तिन्ने ही मद्रास विश्वविद्यालय तो BA सन। जन्म तिथि माता पिता पिंड बारे अमृतधारी सिंह जी तो बिना होर किसी का पता नहीं। बहुते ब्राह्मण वंश विचों सन, जिन्हें पुणछ विचों सन, खास करके ब्राह्मण सन।
जिस प्रांत विचों सानू लिख दिता है, गौ रखिया ते देश सेवा। जिथे भी आन शान अणख गैरत धर्म ते हमला होया, निर्मले महापुरखां मैदान विच डट गए। धर्म अते देश की आज़ादी खातर अपना आप वार दिता। अजिहियां अनेक घटनावां प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आप सरवण कर रहे हो निर्मल पंथ की गौरव गाथा। ये कथा बड़ी गौरव है कि कितने पुरातन महापुरखों के आप जी नाम सरवण कर रहे, उन्होंने किहड़े किहड़े खेत्र में सेवावां नहीं कीतियां। देखो, पंजाब की आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते सेवावां कीतियां, कीर्तन के खेत्र विच, गुरबाणी पढ़न पढ़ाउण के खेत्र च, वैदिक के खेत्र च, ज्योतिष के खेत्र विच, और बड़े प्रचार के माध्यम बनाए। तो सब तो वड्डा परोपकार जिहड़े बहुत आध्यात्मक ग्रंथां की रचना की। सो हुण आप जी सुन रहे हो कि गौ रखिया इस खेत्र विच भी निर्मले महापुरखों ने की बुलंदियां छुईयां, वो आप जी सरवण कर रहे हो। धर्म अते देश की आज़ादी खातर अपना आप वार दिता। जिहियां अनेक घटनावां प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मकुटी कांशी दे महंत पंडित बसंत सिंह जी महान देश भगत सन। ब्रह्मकुटी देश भगतां दीयां सरगर्मियां दा केंद्र सी। श्री जय प्रकाश नारायण ने ब्रह्मकुटी विच काफ़ी समा अज्ञातवास किया। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो कांशी के इलाके वास्ते साहित्य प्रकाशित हुंदा सी, वो ब्रह्मकुटी विच छपदा सी। महंत साधु सिंह जी कनखल वाले कांग्रेस अंदोलन विच 9 महीने जेल विच रहे सन। संमत 1975 बिक्रमी विच हरिद्वार के नज़दीक पिंड कटारपुर विच मुसलमाना ने गौ वध करने का ऐलान किया ते गुरुद्वारा पातशाही तीसरी डेरा बाबा दरगाह सिंह दे महंत हरनाम सिंह जी ने अपना धर्म जान के गौ रखिया वास्ते दृढ़ निश्चय कर लिया। नियत समय ते दोनों पासियां तो इकट्ठ हो गया। मुसलमान गौ वध लई दृढ़ सन ते संत बाबा हरनाम सिंह जी ने बहुत समझाया, पर मुसलमान अपनी जिद ते अड़े रहे। अंत लड़ाई हुई, गौआं छुड़ाइयां गईयां। महंत जी कतल केस विच गिरफ्तार कर ले गए अते 4-5 साल मुकदमा चलिया। 8 अगस्त 1919 ईस्वी नूं महंत जी नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई गौ रक्षा के अंदोलन विच। ये निर्मले महापुरुषां जो अपील करन नाल उम्र कैद विच बदल गई। 8 वर्ष लखनऊ अते इलाहाबाद दीआं जेलां विच सज़ा भुगते 28 दसंबर 1926 ईस्वी नूं रिहा होए। हालांकि हिंदू वीर कहते ने कि गौ साडी माता है, परंतु जिवें श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी गौ ब्राह्मण तिलक जंजू की रक्षा की मोती चोटी की, जदों ये सतगुरां दे पास गए ने, साध संगत एक हथ जनेऊ नूं ते दूजा हथ चोटी नूं सी इन्हां दा, ते जाके फरियाद कीती सी सच्चे पातशाह कृपा करो, औरंगजेब बहुत वड्डे तशद्दद कर रहा है, धक्के नाल मुसलमान बना रहा है, मंदिरां नूं ढा रहा है, उन्हां दी रोड़ी कुट के मसीतां उत्थे बना रहा है, साडे ते कृपा करो। साध संगत श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने सीस का बलिदान दिता सी। मतलब कि ये हिंदू धर्म भावें पुरातन है, पर इन्हां दी रक्षा वास्ते गुरु साहबां सिखां ते निर्मले महापुरखां ने किनियां आहूतियां दित्तियां। सो साध संगत असी अपने इन्हां वड वडेरे
महापुरखों का एहसान सारा देश दे नहीं सकते। इस तरह धर्म सत गौ गरीब की खातर महापुरख अपने प्राणा तक नूं भी वारते रहे। गुरुद्वारा सुधार सेवा विच भी हिस्से पाए। सन 1920 तो 1925 तक अकाली लहर 100 साल पहले की गल है, गुरुद्वारा सुधार लहर चली, जिस विच सिख कौम ने अथाह कुर्बानी की थी, जिथों के ये अकाली लहर चली है। वास्तविक विच ये अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लहर सी। इस समय हज़ारां आदमी जेलों में सुट्टे गए, लखां ने जुर्माने भरे, कुरकियां करवाइयां, अकैद असह कष्ट सहे ते शहीदियां पाइयां। एवें थोड़ी अरदास विच आपां कहने जिन्हां सिखां सिखणियां ने अकैद ते असह ना कहण योग ते ना सहण योग, एडे एडे दुख झले, इन्ने इन्ने तसीहे झल के शहीदियां पाइयां। ताई उन्होंने याद किया जाता, उन्होंने कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। कई बारी अरदास विच आपां मूँह खोल के वाहिगुरू भी नहीं बोलते। उन्होंने इन्ने इन्ने तसीहे झले ने, उस वेले साडे अखां अगे दृश्य आ जाना चाहिए कि अकैद ते असह दुख झले ने साडे वास्ते, देश वास्ते, कौम वास्ते, धर्म वास्ते, मजहबां वास्ते। सो उन्हां दी कमाई बड़ी उच्ची ते सुच्ची सी। इस समय हर मोर्चे विच निर्मले संतां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया, दुख तसीहे झले। ये गल वखरी है कि अज साडे कई विद्वान कथावाचक प्रचारक नाम नहीं लेंदे, परंतु साध संगत बड़े महापुरखों ने अपनियां आहुतियां समय अनुसार दित्तियां। दुख तसीहे झले अते जलावतन होए। 1920 तो लैके हुण तक पंथ का साथ देंदे आ रहे हैं। भावें महापुरखों का इतिहास बड़ा लम्मा है, जिवें महंत मूल सिंह जी 6 महीने कैद रहे। साध संगत इन्हां दे दर्शन भी दास ने अमृतसर बचपन किए। मगरों आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर चुने गए। बड़े अच्छे दार्शनिक, बड़े अच्छे दर्शनी। मंजी साहब दीवान अस्थान के पिछले पासे इन्हां महापुरखों का स्थान से दास ने बचपन च इन्हां दे बहुत दर्शन किए। इस समय आप 2 साल मुल्तान जेल विच रहे, 500 रुपये जुर्माना भरिया। सारे महापुरखों की इस तरह की सेवा है इन्हां संतां तो बिना, जो वख-वख मोर्चियां विच अकैद असह तसीहे सहंदे रहे। उन्हां महापुरखों के केवल नावां की सूची इस तरह है: संत गुरबख्श सिंह जी ज्ञानी, लिखारी बूंगा तलवंडी साबो। ये साध संगत होने के समय दियां सारियां लिखतां आप जी सरवण कर रहे हो। संत बलबीर सिंह जी वियोगी, संतपुरा मॉडल टाउन दिल्ली। संत प्रीतम सिंह जी कोट फतोही जिला जलंधर, जिन्हां गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच हिस्से पाए। ये जिहड़े अज असीं गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदारे कर रहे हैं, ताइयों ते अकाल तखत तो यह कहा जाता कि निर्मले महापुरख अकाल तखत का अनिखड़वा अंग है। संत प्रताप सिंह जी राणा हरिद्वार, संत गुरदयाल सिंह जी बोपा राय, संत अजैब सिंह जी लम्मा जटपुरा, पंडित बसंत सिंह जी वैद ब्रह्मकुटी बनारस, महंत टहल सिंह जी डफरवाल वाले, संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी कथा वाले जो साडे चाचा जी सन। ये भी गुरुद्वारा सुधार लहर विच साध संगत इन्हां नूं कथा वाले करके कहते सन। साडे पिता जी तो छोटे सन, बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान सन। दास ने पहली गुरमति विद्या पिता जी तो बाद इन्हां पासों लई है।
महंत बुढ़ा सिंह जी कोट भाई, महंत सुच्चा सिंह जी कोट भाई, महंत नारायण सिंह जी जम्मू कश्मीर, संत ज्ञानी राम सिंह जी पिंडी के, संत हाकम सिंह जी ज्ञानी छोटे संत, संत पाला सिंह जी, संत गुरबख्श सिंह जी जब्बोवाल, संत राम सिंह जी सूरमा आदि साध संगत गुरुद्वारा सुधार लहर विच इन्हां महापुरखां निर्मलियां ने हिस्से पाए। अज भी अकाल तख्त साहिब ते जदों जथेदारां दी चोण हुंदी है उदों खास करके निर्मले महापुरखां नूं जरूर बुलाया जाता है। जैतों के मोर्चे में 500 सिंघां दा 11वां शहीदी जथा श्रीमान संत संतोख सिंह जी बडूवाल वालियां दी प्रधानगी जथेदारी हेठ 23 जुलाई 1924 नूं श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर तो अरदास करके तुरिया। अनेक पिंडां दी प्रचार करदा होया 1 सितंबर 1924 ईस्वी नूं जैतों विच आके गिरफ्तार होया। भाई मेजर सिंह जी पिंड पुछो कलां द्वारा ये प्राप्त होया है। लेख 500 दा 7वां शहीदी जथा 1 जून 1624 ईस्वी नूं तख्त केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब तो अरदास करके तुरिया, जो अनेक पिंडां विच दी प्रचार करता होया 29 जून 1924 ईस्वी नूं जैतों जाके गिरफ्तार होया। इस जथे विच दुआबे दे निर्मल भेग दे महापुरख, नाम अभ्यासी विद्वान विरक्त जितेंद्र महंत संत विशेष रूप में शामिल होए, जिन्हां विचों हेठ लिखे महापुरखां दे नाम वर्णन योग ने। सब तो महान आत्मा महापुरख बंदगी दे और इंद्रजित सत्कारयोग साडे दादा गुरु जी श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जान वाले इस जथे में सब तो अगे होके सारे जथे की अगवाई इन्हां महापुरखां ने की। अगे महाराज जी का नाम है शाहबाद मारकंडे वाले महाराज जी। इन्होंने भी उस जैतों के मोर्चे विच इस गुरुद्वारा सुधार लहर विच सेवा की भाव के ये साध संगत संत बाबा हरनाम सिंह जी ते महाराज जी वड्डे महापुरख, बाबा हरि सिंह जी कहारपुर वाले जो इन्हों के गुरभाई सन महाराज जी साढ़ियां दे, संत दीवान सिंह, संत किशन सिंह नंगल खुर्द, संत पाल सिंह, संत रतन सिंह जी ज्ञानी जी जेड़े के अंगीठा साहब जैन की सेवा करते रहे, दास ने इन्हों के बेअंत दर्शन किए। संत प्रीतम सिंह जी लैली खुर्द, संत हरी सिंह जी सुखई, संत प्रदुमन सिंह, संत पंडित पूरन सिंह जी, संत दलमीर अदीप सिंह जी डबेली, ये सारे 700 का जथा लैके सत्कारयोग साध संगत जैतों के मोर्चे विच गए ते मोर्चे नूं फतेह की। सो सत्कारयोग साध संगत गुरुद्वारा सुधार लहर विच ऐसे महापुरखों ने अपनियां आहुतियां दित्तियां। अज जिथे एडे एडे महान संप्रदावां दे ये महापुरख धर्म के कारज चला रहे ने, दुआबे विचों भी साध संगत इस सिक्खी विच बड़ियां आहुतियां पाईयां गईयां। वड्डियां सेवावां अज भी दुआबे विच ते माझे विच चल रहीआं हन। सो इस प्रकार गुरुद्वारा सुधार लहर विच इन्हां महापुरखां ने सारियां सेवावां पाईयां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर निर्मले संत कौन कौन रहे वो आप जी सरवण करो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख पंथ की प्रतिनिध संस्था है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆਈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹੰਤ ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਔਰ महंत प्रेम सिंह जी मुराला, संत गुरदयाल सिंह जी बोपा राय, महंत कुंडा सिंह जी कोट पाई, महंत सुच्चा सिंह जी कोट पाई, महंत नारायण सिंह जी जम्मू कश्मीर, महंत बचित्र सिंह जी नंगाली साहब, ज्ञानी करनैल सिंह जी अमर सूरेवाला, संत शेर सिंह जी अते संत बाबा मिठा सिंह जी एग्जैक्टिव मैंबर भी रहे। मतलब किहड़े किहड़े खेतर विच इन्हां ने सेवावां नहीं निभाईयां। निर्मले संत शहीद होए, उन्हां दे नाम आप जी सरवण करो। अपने सिद्धांत मर्यादा धर्म ते पहरा देंदे होए बहुत सारे निर्मले महापुरुष सतगुरु जी दे समय तो लैके हुण तक शहीद भी हुंदे रहे, पर अपने असूल दा त्याग नहीं कीता। भाई मनी सिंह जी बंद बंद कटवा के लाहौर विच शहीद होए। बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरमंदर साहिब जी अमृतसर की रख्या वास्ते शहीदी प्राप्त की। बाबा दीप सिंह जी के उत्तराधिकारी भी शहीद होए। इस तरह समा आउण ते निर्मले महापुरख अपने आप का बलिदान करते रहे। समा पा के इस इतिहास थोड़ा थोड़ा तब्दील किया गया, पर पिछोकड़ तवारीख देखिए तो पता लगता है। एक बार कांशी बनारस में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जलूस निकलिया, जिसकी अगवाई निर्मल भेख के संतां ने की। समय निर्मल भेख के संत नरिंदर सिंह, शिष्य श्रीमान महंत गणेशा सिंह जी, डेरा अंतरजामी अमृतसर चौक गदौलियां विच सरकार विरुद्ध विखियान दिंदे होए पुलिस की गोली नाल शहीद होए। संत उत्तम सिंह जी लाहौर शादरा 1947 ईस्वी में शहीदी पाई। संत जोगा सिंह जी 1947 ईस्वी में शहीद होए। संत किशन सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया विच बैठे हुण 1947 ईस्वी में शहीद होए। संत रत्नाकर सिंह, शिष्य संत कपूर सिंह जी ने भी शहीदी प्राप्त की। महंत करम सिंह जी करमवीर 1984 ईस्वी के दंगिया समय पीली कोठी इलाहाबाद में शहीदी पा गए। धार्मिक अते राजनीतिक पदवियां। निर्मल भेख के बहुत सारे संत धार्मिक विद्यक संस्थावां अते राजनीति में हिस्सा लैंदे हेठ लिखियां धार्मिक अते राजनीतिक पदवियां ते सेवा करते रहे। महंत मूल सिंह जी श्री हरमंदर साहिब जी अमृतसर के आनरेरी हैड ग्रंथी, सिंह साहिब ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहिब अमृतसर, प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते मैंबर पार्लीमेंट रहे। संत प्रेम सिंह जी मुराला पंजाब असैंबली के मैंबर रहे। संत हरनाम सिंह जी MLA अते वजीर रहे। महंत हाकम सिंह जी डेरा बाबा मिश्रा सिंह धार्मिक कमेटी के मैंबर रहे। ज्ञानी नार सिंह जी रोपड़ वाले तख्त केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब के हैड ग्रंथी रहे। महंत मेहर सिंह जी तख्त दमदमा साहब हैड ग्रंथी अते कायम मुकाम जथेदार रहे। महामंडलेश्वर स्वामी सचदानंद हरि साक्षी मैंबर पार्लीमेंट हन इस वेले भी। सो इस प्रकार साध संगत अनेक प्रकार नाल इन्हां महापुरखां ने हरेक खेतर दे विच ये आहुतियां पाईयां, सेवावां कीतियां। इस करके इस पुस्तक का नाम कोई अतकथनी नहीं है कि निर्मल पंथ की गौरव गाथा, गौरवमयी गाथा है। गर्व होना चाहिए सानू कि साडे वड वडेरे पूर्वजां ने किन्नियां किन्नियां कालना सेवावां कीतियां। साध संगत धर्म के खेतर में धार्मिक लोगों तो जरूर जजमेंट करना चाहिए। बाकी जिन्हों ने अपना जीवन शराबा कबाबा च बिताना है,
ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਦਇਆ ਧਰਮ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।